Okay, just let me repeat this part because okay, देखो ये वाला homework में u is infinite, putting u infinitive, r is 20, putting in this we get the v is 60. It means parallel rays will be converging at 60 centimeter. Other side plus आया ना इधर right hand side. Now this part was also given. Concave surface फर्स्ट पार्ट को रिपीट करना है तो इसमें u1 रिमेनिंग सेम. देखो u1 जो होगा ना u सॉरी that remains 100 centimeter. R will be now minus 20 because center of curvature on same side, front side. इस तरफ है तो माइनस होगा. Now putting these values and simplifying, if you simplify it, v will be minus 42.8 centimeter. ठीक है. Minus means in front of the concave surface, इस तरफ, this side. Plus means back side, है ना, other side. तो माइनस, तो रे डायग्राम कैसे होगा? रेस कमिंग लाइक दिस, यहाँ पे नॉर्मल जा रहा है ऐसा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी. तो इधर तो और ये वाली रे इधर गई तो दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट नाउ, डाइवर्जिंग. ये ऐसे तो इसको एक्सटेंड कर दो इधर. और दिस इज द पॉइंट वेयर वर्चुअल इमेज विल बी देयर. कितना आ रहा है ये? 42 सेंटीमीटर. सामने है इसलिए माइनस. गॉट इट? There is the object, there is the image. ठीक है. Somebody observing from this side will feel here ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज यहाँ पे उसको लगेगा कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट रखा हुआ. Which will be in fact image of that particular object which is positioned at 100 and उसको अपीयर होगा 42 पर ही. क्लियर? All right. ये पार्ट करना नहीं है, जस्ट यू कैन टेल मी. एक मिनट देखो दुआ है. अगर सराउंडिंग मीडियम को हमने, if we put the surrounding medium, water, if we put the water in the surrounding medium, then what is going to change? अगर उसको हमने पानी के अंदर रख दिया तब क्या चेंज होगा? n1 will change, है ना? n1 will be 4/3. So if we solve it, I think 300 will come. So n1 will change, है ना? अगर हम उसको पानी में रख दें तो n1 will be, because earlier it was rays were coming from air, so n1 was 1. Now they will be coming from water, n1 will be 4/3. Rest of the things will remain same. First part में in place of air they give you water, so n1 will be changed, then you can solve it. Whatever the answer comes, that will be the final answer. Clear? That part we can leave. One more question you can do it. This one. This question is in homework. You take this question and solve it. इसको solve करके भेजिए. ठीक है? Take down this question.
Okay. So one more situation we can take it like this. There is round spherical glass of radius 5 centimeter and of refractive index 1.5 shown in the figure. There is an object O inside as shown. Find the position and its image as seen from the point P. P is here. Okay. Seen from the point P outside of the glass. And if O is, object is first at here, point O from the P, then say 5 centimeter from P, that will be center of curvature. 5 centimeter means यहाँ पे हो जाएगा. ऑब्जेक्ट को बाद में हम इधर शिफ्ट कर देंगे सी की तरफ. That is at C ऐसे लिख देते. That is at C. C क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको करिए जल्दी से. क्विक solve the first part. Second part you can do at home. Do it fast. देखो क्या आंसर आ रहा है. And you have to make the ray diagram of this also. You will be how much? बोले. Quick response. You how much? There. Why don't you speak out? So -3. और R. Okay, N1. चलो ठीक है. U is -3. N1. So 1.5. Why 1.5? So it's inside the glass. Okay, rays will be coming from this side and ऐसे आएंगे. Then they will go this side. Rays N1 से N2 में आ रही. ये I mean रेज जिसमें से आती है वो N1 हो जाता है, जिसमें जाती है वो N2 हो जाता है. किसमें जा रही है? पी के पास आने के लिए किसमें जा रही है? पी एयर में है कि नहीं? बाहर से देख रहे हैं. Yes, sir. पी इज हियर. तो यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है. N2 will be 1. R. So -5. यस, देखो ये R जो है अभी इस तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऐसे जैसे स्फेरिकल सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने से अगेंस्ट द रेज जाएंगे. रेज ऐसे जाएंगी बाहर तो माइनस हो जाएगा. वैसे भी उसको देखो
ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के लिए उसको कॉनकेव दिखेगी ऐसे। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट व्हेन वी लुक दिस साइड ऑफ दिस spherical surface will appear to be concave, है ना। तो उसका सेटअप कर्वेचर इधर है towards the object side, which is the negative side, है ना। माइनस कितना 5 दिया है। नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। बोलो कितना आ रहा है जल्दी से। फार्मूला रिमेनिंग सेम, n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r। ठीक है, पुट द वैल्यू एंड देखो कितना आ रहा है। कितना है? Sir, minus 6.42 आ रहा नो, something was wrong, gone wrong। मिस्टेक हुई, यहाँ पे प्लस होना चाहिए ना। -2.5 सेंटीमीटर। रे डायग्राम कैसे आएगा इसका? व्हाट काइंड ऑफ रे डायग्राम विल बी देयर? कंप्लीट द रे डायग्राम क्विकली। रे डायग्राम देखो ऐसे आएगा। देखो ये वाली रे तो ऐसे चली जाएगी, ये नॉर्मल होगा यहाँ पर। यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे गई, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर जब हम इसको एक्सटेंड, इधर एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इट विल अपीयर टू बी क्लोजर। फॉर पी, फॉर पॉइंट पी, इट विल अपीयर टू बी क्लोजर। है वो 3 सेंटीमीटर पर, और 0.5 सेंटीमीटर आगे आ जाएगी वो। क्लियर? अरे देयर,
Yes, sir. सेकेंड पार्ट में रिपीट इफ इट इज एट ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को हमने पीछे शिफ्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। सेकेंड पार्ट, इफ ऑब्जेक्ट इफ इट इज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम P, that is at the center of curvature। क्विक आंसर दीजिए अभी फटाफट। अरे जल्दी जल्दी सॉल्व क्या करो, तुम लोग सॉल्व नहीं करते ना, इसीलिए फिर मिस्टेक्स होती है और स्पीड भी कम हो जाती है। डू इट फास्ट। फिर मिस्टेक सीधे एग्जाम में करोगे, यहाँ नहीं करोगे ना। डू इट इन द एग्जामिनेशन। बेटर स्टार्ट सॉल्विंग हियर एवरी टाइम, गेट द अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व, डू इट। Out of these many students, nearly 17, only hardly one is replying. Others are keeping mum. क्या रहा? If object is at C, Sir, -5 centimeter. Sir, -5. so means what? -5 means what? It's Yeah. at the same place. At same place, at the site of object itself. -5 means at the site of object itself. वहीं पर ही बनेगी जा, because normal भी वहीं से आ रहा है, तो रेज ऐसे आएंगे डाइवर्ट, they will not be diverting, ऐसे निकल जाएंगे, और ये वाली ऐसे, it means both are intersecting there only। इस तरफ तो डाइवर्ट हो रही है ना, ये वाली ऐसे जाएगी, इधर तो डाइवर्ट हो रही है, they are not intersecting, we have to extend them back। तो at the site of, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है डेंसर मीडियम के अंदर, तो इमेज वही बन जाती है देयर इटसेल्फ। दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, यू कैन रिमेंबर डायरेक्टली। और अगर हमने यहाँ पे कर दिया और पीछे शिफ्ट कर दिया, इन दैट केस उसकी इमेज बैक साइड आएगी, यहाँ कहीं पे आएगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है तो इमेज और आगे आ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम रहती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मैं बोलूँ इधर से देखो, इफ यू सी इट फ्रॉम दिस साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले का अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, और ये और पीछे चला जाएगा बैकवर्ड। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दूसरा ऑब्जर्वर क्यू ले लो इधर, उसके लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यू कितना हो जाएगा, -7, बिकॉज इधर से 3 है, दिस थिंग विल बी -7। उसका आंसर जो है इमेज, जब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे इधर, तो कुछ ऐसा आएगा, इधर डाइवर्ट होगी, यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट यू कैन सॉल्व इट आफ्टर कैलकुलेशन। अगर मैं थर्ड पार्ट भी दे देता है 5 की जगह 6, तो मोर देन 6 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यू कैन डू इट इफ यू नो प्रॉपर वैल्यू, यू कैसे लेना है, n1 कैसे लेना है, n2 कैसे लेना है ना। यू ऑफ कोर्स रिमेन्स माइनस रियल ऑब्जेक्ट, n1 n2 आपने ठीक ले लिए, r ठीक ले लिया, तो आंसर आ जाएंगे ना। क्लियर? Going back to the previous question, shall I tell you one more point here in this concave में? देखो एक और पॉइंट बताओ इसमें।
ये जो है, अगर कोई यहाँ से देख रहा है ना, somebody observing from here, उसको इमेज यहाँ दिखेगी ना, कितने पर -42.8। अभी आगे आपको डाउट आएगा कि रे जब ये बाहर निकल जाएगी पूरी यहाँ से, तो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी ना, ऐसे कुछ हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। उसका तो एक्सटेंशन कुछ इधर आएगा यहाँ पर। when somebody is seeing from here, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज का काम करेगा। यहाँ पर भी हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के निकालना पड़ेगा, फ्लैट सरफेस का लगेगा वहां पर। बट हमें ये फर्स्ट इमेज के बारे में डिस्कशन करना था, है ना, कि कर्व सरफेस से इमेज कितनी दूर बनेगी, दैट्स ऑल। यहाँ से इमेज यहाँ पर बनेगी, बिकॉज इफ इज फर्दर गोज अवे, again refraction is there, then again we have to see final image। उस केस में क्या बोला जाएगा, फाइनल इमेज till the rays comes out of the system, है ना, till the rays comes out of the system। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, जैसे इस इसकी जगह मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। ओके, पहले ये कर लेते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। बोलो इसका आंसर क्या होगा। एक हेमीस्फेरिकल ग्लास of refractive index n and radius of curvature r is kept on the object O यहाँ पर है, as shown। Find the position of image in each case when seen from the top। यहाँ से देख रहे हैं, इसमें इमेज की डिस्टेंस कहाँ होगी टॉप से, इसमें इमेज की डिस्टेंस कहाँ होगी टॉप से। आउटसाइड में क्या है, एयर है। बोलो क्विक आंसर। इधर क्या है, फ्लैट सरफेस है ना, तो फ्लैट सरफेस का फॉर्मूला लगाओ, अपरेंट डेप्थ इज एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल डेप्थ कितनी है, r/n हो जाएगा। इधर कर्व सरफेस का है, कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाओ, u कितना है, -r, n1 विल बी n, n2 विल बी air1, भी निकाल लो इसमें, है ना। समझा क्या बताया, पहले का फ्लैट सरफेस से देख रहे हैं, फ्लैट सरफेस का फॉर्मूला लगाओ, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो r/n आ जाएगा। फिर कर्व सरफेस से देख रहे हैं, कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाओ, अभी तो किया था ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दिखता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दिखेगा ना। अभी जस्ट नाउ वी आर डन, Yes, sir. तो उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, तो भाई v इज इक्वल टू माइनस आएगा, ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो एट देयर इटसेल्फ, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो दिस कैन बी द क्वेश्चन, इस तरह से भी पूछ सकते हैं।
ऑलराइट, देखो यदि ये क्वेश्चन है, दिस डोंट राइट इट, इसको जस्ट समझ सकते हैं, केवल लिखने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर जेई के लिए। ये एक एयर बबल है, एक ये एयर बबल है बड़ा सा, पानी के अंदर है, पैरेलल ले जा रही है ये, मतलब यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एयर बबल में बेंड होंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो फर्स्ट सरफेस के लिए जब हम ये लगाते हैं u विल बी इन्फिनिटिव, यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटिव लिया हमने। n1 क्या है, कौन से आ रही, पानी से आ रही 4/3 से। n2 क्या है, एयर में जा रही, तो n21 लिखा, n1 4/3 लिखा, सॉल्व किया, v -30, मतलब -30 मीन्स इस तरफ आएगा, तो ऐसे एयर में डाइवर्स हो जाएंगी, और यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर -30 पर ये -30 पर इमेज बन जाएगी उसकी। सपोज सन रे से हमने फोकस किया, उसका सन की इमेज यहाँ पर बन जाएगी, बट अभी इधर सेकेंड सरफेस भी है, सेकेंड सरफेस को इधर से देख रहा है अभी, उसके लिए ये जो इमेज है फर्स्ट सरफेस की, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है इसकी 10, और ये 30 है, 40 हो जाएगा, नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, 10 + 10 और ये 30, तो -50। तो इस सरफेस से, या ये जो इस सरफेस का पोल है, यहाँ से ये जो इमेज बन रही है, पहली सरफेस जो इमेज बना रही, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दैट विल बी u डैश -50। अभी रेस किस में से आ रही, n1 में से, n1 इज एयर, किस में जा रही, फिर से वाटर में जा रही, नाउ n2 विल बी 4/3 वाटर, और r अभी ये ऐसे है, देखो ऑब्जर्वर इधर है, तो उसके लिए, और ऑब्जेक्ट इधर है, सॉरी ऑब्जर्वर तो इधर है, फाइनली ऑब्जेक्ट उसके लिए इधर है, देखो ये, तो उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर माइनस रहेगा, -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इस साइड है ना, तो ऑब्जेक्ट की साइड में है। वैसे भी ऑब्जेक्ट को ये वर्चुअल जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कॉनकेव दिखेगी ये, तो -10, जब ये वैल्यू सब पुट करके सॉल्व करते हैं तो -25, यहाँ से जो ऑब्जर्वर होगा उसको -25, मतलब ये 20 हो गया, थोड़ा सा बाहर यहाँ पर दिखेगी, और रेस बाहर चलेगी सिस्टम से, बिल्कुल बिल्कुल बाहर चलेगी, बस उसके बाद नो मोर रिफ्लेक्शन टिल द रेस कम्स आउट, एंड वेयर इज द ऑब्जर्वर, उस पर डिपेंड करेगा। फाइनली यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगी ये 25 सेंटीमीटर, और कोई इसके अंदर बैठ के देख रहा है फर्स्ट सरफेस के, उसके लिए केवल फर्स्ट सरफेस का रिफ्लेक्शन इफेक्टिव होगा, उसको यहाँ पर देखेगा इमेज, उसको लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, जबकि रेस पैरेलल आ रही, ठीक है। सन रेस को फोकस कराओ, यहाँ पे बैठ के देखो, आपको सन यहाँ दिखेगा, पॉइंट इमेज दिखेगी, दैट विल बी नथिंग बट इमेज, एक्चुअल में तो सन इन्फिनिटिव पर है, तो यहाँ से देख रहा है, उसके लिए ये सरफेस जो इमेज बनाएगी वो एज पर दैट ही विल सी, उसको यहाँ पर दिखेगा 25 सेंटीमीटर, लाइक दिस। 2 बार उसको करना पड़ता है, पहले फर्स्ट सरफेस के लिए लगाना पड़ता है, एंड देन सेकंड सरफेस के लिए भी। फर्स्ट सरफेस जो इमेज बनाएगी, सेकंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जैसा कि हमने मिरर्स में भी सीखा था, प्ले कर्ड मिरर में सीखा था, वहां यहाँ भी यही। तो सेकंड सरफेस के लिए फिर से जो इमेज बनेगी, दैट विल बी द फाइनल इमेज, वो किसको दिखेगी, यहाँ से जो देखने वाले, और उसको फाइनल इमेज बोल सकते हैं, नोबडी ऑब्जर्वर नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, एंड रेज विल बी गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, उसके बाद कुछ नहीं होगा,
रेज जब सिस्टम से बाहर चली जाती है वो फाइनल इमेज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, दैट कैन बी यूजफुल फॉर जेई ओनली, नॉट फॉर नीट, नॉट फॉर बोर्ड। इसमें ऐसे दे सकते हैं, जैसे लिखा ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज when observed from distance of final image from, यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, from point Q, from point Q। when observed from other side, यहाँ से, या फिर डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम Q, बिकॉज उसके बाद तो रेस बाहर चली गई। यहाँ तक भी हम क्लोज कर सकते थे, ये जो लास्ट लाइन है, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट विल डू, बट ओके। ठीक है, तो दैट्स हाउ टू सरफेसेस और दोनों सरफेसेस का, टू सरफेसेस आर इन एक्शन हियर। Okay, now moving on to the lenses. How do we define the lens? Lens is the refracting medium bound between two surfaces, at least one of them should be curved. दो surfaces के बीच का refractive index medium, दो surface के बीच का medium, दोनों में से एक तो एटलीस्ट कर्व होनी चाहिए। दोनों सरफेस फ्लैट नहीं हो सकती, एक को कर्व करना पड़ेगा, एक फ्लैट ले सकते हैं, एक को कर्व करना पड़ेगा, है ना, या दोनों को कर्व ले सकते हैं। तो इट इज a refractive medium bound between the two surfaces, at least one of the surfaces should be curved। ठीक है, now convex or converging, convex और converging, converging कौन से होते हैं? जो पैरेलल रेज को परस्पर एक्सिस की तरफ बेंड करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इधर ही क्यों बेंड होगी, इधर क्यों नहीं जाएगी? बोलो, माय क्वेश्चन इज दिस, एक मिनट, लेट मी आस्क यू। ये रेज जो है, why can't be, why doesn't, why it comes this side, why can't it go that side? बोलो, दोनों तरफ जा सकती है। वैसे देखा जाए तो it can go both side, it can be it can be coming down or going up depending upon what, both। देखो एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये, will it be going like this, will it be going like this, will it be going like this? क्या आंसर होगा? बोलो, थोड़ा बहुत तो लेंस पढ़ाई है आपने 10th में, क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो। 1. आदित्य? The 1. 1। व्हाट अबाउट 2? ठीक है, 10th में आपने इतना नहीं पढ़ा कि आप पूरा रिप्लाई कर सके। इट कैन बी 1, 2 और 3, तीनों आंसर हो सकते हैं। तीनों आंसर कैसे हो सकते हैं? जब लेंस एयर में है तब तो 1 आंसर होगा, जब लेंस किसी डेंसर मीडियम में है ना, किसी लिक्विड में डाल दिया, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में, है ना, then it can be 2 also, can be 3 also, can be 1 also। अब वाटर में डालेंगे तभी भी 1 होगा, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, लेंस की 1.5, अगर ग्लास का लिया हमने, बस थोड़ा सा आगे चला जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, 1 जैसे ही रहेगा। बट हमने अगर 1.5 के लिक्विड में डाल दिया तब 2 हो जाएगा, और 1.6 के लिक्विड में डाल, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, लेंस का 1.5 है ना, लेंस का 1.5 है, लिक्विड का भी 1.5 है, जिस लिक्विड में डाला तब तो ऐसे चला जाएगा। अभी लिक्विड का 1.6 है तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है,
बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन एयर। अभी हमने एयर में जनरली जो सिचुएशन होती है नॉर्मल, है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। when the lens is put into the other medium other than air, what will happen? ठीक है, so that we'll see after we complete the lens makers formula. लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन ये फिर से पूछूंगा आपसे, बट फिलहाल ये एयर में है, इट इज इन एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एयर है बाहर, तो ठीक है। तब ये देन व्हाई इट इज कमिंग दिस साइड, ऐसे क्यों आएगी? कैन समबडी टेल व्हाई इट विल कम, व्हाई इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, व्हाई इट विल बी कन्वर्जिंग? सर rarer से denser medium आ रही तो it will come closer to the normal. कहाँ पे क्लोजर, नॉर्मल कहाँ पर है यहाँ पे? ओके, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यू वांट टू से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले यहाँ पे लगाओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे होगा, ये इसका ऐसे कंप्लीट होगा, इसका सी यहाँ होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे। फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगेगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ऐसे आएगा, फिर नॉर्मल से दूर, ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ज होगी, पहले एक फर्स्ट सरफेस पे कन्वर्ज होगी, सेकंड सरफेस पे और कन्वर्ज होगी, दो बार, इसलिए डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं उसका। तो दोनों सरफेस पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर विल बी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अभी इस सरफेस के लिए इधर नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर में आ रही तो बढ़ गया, दिस इज इंक्रीजिंग, है ना, ये ज्यादा है इससे, और बेंड हो गई इधर, गॉट इट? तो ट्वाइस बेंडिंग, डबल रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंसेज अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे? डबल कॉन्वेक्स। एक साइड की प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, दोनों कर्व्ड है तो ये कॉन्वेक्स, बिकॉज कॉन्वेक्स कैसे पता लगा? थिन है, एजेस पर थिन होता वो, है ना। तो कॉन्वेक्स फैमिली का है, तो कॉन्वेक्स ये सरफेस काउंट हो गई, तो ये वाली सरफेस बची अभी कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है वो कॉन्वेक्स फैमिली का है, लेकिन दूसरी सरफेस भी है, उसकी वजह से कॉनकेव कॉन्वेक्स। ऐसे ही ये डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और यहाँ पे एजेस पर थिक है, कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस लास्ट में काउंट होगी, और दूसरी सरफेस कौन सी बची? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। सेंटर में थिन, circumference पर thick, therefore it is concave, other surface is convex surface, तो convexo concave, got it? Center of the lens, midpoint of the lens is called optical center. Optical center of the lens, center of the lens is called optical center. Rays passing through it goes undeviated. ऑप्टिकल सेंटर से रेज अनडिविएटेड जाती है फॉर थिन लेंस, अपने कोर्स में थिन लेंसेज, फॉर थिन लेंसेज, अपने कोर्स में थिन लेंसेज हैं। we'll talk always, we will be mentioning, even if we don't mention, they will be taken as a thin lenses. Got it? यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे पोल नहीं बोलेंगे, unlike your mirror and spherical surfaces, we don't call it pole. Clear?
Yes, sir. ओके, तो लेंस का इंट्रोडक्शन, लेंसेज भी नो वी कहाँ यूज करते हैं, इन पावर ग्लासेस वी यूज, in our eyes also, convex lens is there, in telescope, in microscope, we use the lenses which are providing the magnification and resolution also. Magnification में image को बड़ा करना है, resolution में clear करना है, तो with the help of lenses it can be done, bigger and clear images. कैमरे में भी लेंस होते हैं, lens makers formula can we see it tomorrow? In place of that we can complete the numerical which was given to you. ये कल देखेंगे, ये वाला numerical complete कर लो जल्दी से, ये वाला. So can you show the optical center definition once? Okay. Center of the lens is called optical center. Rays passing through it goes undeviated for thin lenses. Thank you, sir. Okay. So this you can complete, then we'll wind up. I answer. U कितना दिया है?
If you use minus x, v is how much? Are you there? यस सर सर 2r आएगा शायद सर आ रहा है क्या u कितना लिया है? u कितना लिया है? सर PO इज इक्वल टू OQ दिया है तो U इज इक्वल टू V लिया मतलब u U equal to को v इक्वेट sin कर लिया साइन कन्वेंशन भी तो लगेगा भाई, u रियल है। U माइनस आ गई मतलब U हम्म, V इज अगर इक्वल टू दोनों डिस्टेंस इक्वल दिए हैं, ये वाला और ये वाला, बट ये u इधर है ना, रियल ऑब्जेक्ट है, तो u माइनस एक्स तो v प्लस एक्स, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो अभी, है ना। v दिस साइड, v इज अदर साइड, प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लो जल्दी से। व्हाट इज द आंसर कमिंग? इतनी हिंट देने के बाद भी अभी तक अदर्स आर नॉट रिप्लाइंग, कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है, इसका मतलब यू स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, सब इजी गोइंग एंड nobody is trying, nobody is responding. I don't know, इतना बोलने के बाद भी असर नहीं होता तुम लोगों को। इतनी देर में तो आंसर आनी चाहिए जितनी देर में मैं तुम्हें u and v लिखता हूँ। By that time your answer should come. You should be fast enough to reply. थोड़ी सी हिंट मिल गई, sufficient. Yes. सर 5r Hmm. Five R is the right answer. Value put कर दो उसमें. Use the formula and put the value n1, n1 n2 तो same है ना? जब सॉल्व करेंगे x will be 5R. ठीक है, तो complete this 5R, कौन सा ऑप्शन है इसमें? A. Okay, let me put the recording off and अभी आप